अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको एक ऐसी जुल्म की दास्तान सुनाएंगे कि थाना भाटी के इलाके में कुछ अरसा पहले एक कत्ल होता है और कत्ल करवाने वाले कौन थे? मकतूल के इंतहाई करीबी रिश्तेदार। और फिर कत्ल करता कौन है? वो करता है एक शूटर, और शूटर लेता है सिर्फ 10,000 रुपये मुआवजा। ये कत्ल क्यों करवाया जाता है और कत्ल करने वाला कहता क्या है कि उसने क्यों कत्ल किया, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। थाना भाटी गेट की हदूद में एक कत्ल होता है और कत्ल करने वाले किस तरह से कत्ल की वारदात करते हैं ये यकीनन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो बताएगी। मुलजमान के हवाले से हमें ये मालूम हुआ है कि गिरफ़्तार हुए हैं, लेकिन ये कत्ल होता क्यों है, कौन कत्ल करता है और कौन कत्ल करवाता है? मुकदमे के मुद्दई जो भाई भी हैं वो भी हमारे साथ हैं, दूसरे भाई जो गवाह भी हैं, और इस मुकदमे में जो मकतूल है उसके बड़े भाई भी हैं। और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कत्ल की वारदात किस तरह से हुई और कत्ल क्यों करवाया गया। भैया आप अपना नाम तुसी दसो, माइक नज़दीक करो, अपना नाम दसो की ये तुहाडा? खुरम शहजाद। खुरम शहजाद साहब की होया तुहाडा वड्डा भाई सी? हाँ जी, बड़ा भाई। वड्डा भाई सी ते कितनी उम्र सी ओदी? 47 साल है। 47 साल है। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਟ ਇਹ ਬਾਈ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦਵਾ। ਅੱਛਾ। ਰੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਉਧਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਉੱਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜੇ ਨਾ ਹੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀ। ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ? ਮੇਨ ਰੋਡ ਟੰਗਸਾਲੀ ਗੋਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਛੋਟਾ ਗੇਟ ਗੋਰੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਿਓ ਮਾਲ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਇਚਰਿਓਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਹਨੇ ਫੜਾਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ FIR ਨਾਮਾਲੂਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਵਾਈ? 2 ਨਾਮਾਲੂਮ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਨਾਮਾਲੂਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਬਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਲ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੀਸਰੀ ਦੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨੁਮਾਨ ਉਰਫ ਨੋਮਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਭਾਈ ਨਾਲ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਇੰਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕਰਾਈ, ਉਧਰ ਇਛਰੇ ਦਾਊਦ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਾਈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਫਰਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਨੋਮੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਦ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਲੈਣੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦਾਊਦ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲੋਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਾਊਦ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ। ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ? 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਤਾ, ਚੈਮਰ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਪਰ ਵੱਜੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਹੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਐ ਬੰਦਾ ਮਰ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਕਰਾ ਕੇ ਘੱਟ ਘਲਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਝ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੱਕ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਸ਼ਦ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਰਾਸ਼ਦ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਤਲ।
ਉਹ ਤੇ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਤਲ ਸ਼ੂਟਰ ਕੋ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਨੁਮਾਨ ਉਰਫ ਨੋਮਾ ਸ਼ੂਟਰ, ਇੱਕੋ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਉਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਦ ਦਾਊਦ ਦਾ ਜਵਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ? ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਬਕਾਇਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੈਣੇ ਸਨ ਉਹਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਗਾਇਆ? ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲੀ ਉਹਨੇ ਲੈਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਸੀ ਭਾਈ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਈ ਉਹਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਕਿਉਂ ਫਰਾਇਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਦ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਦ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਰਵਾਇਆ ਕਿਸ? ਦਾਊਦ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸ਼ੂਟਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਸ਼ੂਟਰ ਉਹਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ शूटर ने ना फिर मेरे भाई को मारा। ठीक है। इस मकतूल के भाई का जो असल कहने का मकसद ये है कि 1 लाख रुपया किसी के साथ करीबी रिश्तेदार जिसको चचा ससुर कहा जाता है उसके साथ 1 लाख रुपए का लेन देन था और जब रकम वापस ली गई और जब रकम वापस लेने का तकाजा किया गया तो इनकी उस वक्त भी तल्ख कलामी हुई। ये वाले भाई जो मकतूल के हैं ये साथ थे तो उस वक्त उसने मुलजिम ने इसके ऊपर गन भी रखी, गन भी तानी। फिर उसके बाद कोई मामला जो है वो पैसों का लेन देन जो है वो थोड़ा सा हल हुआ लेकिन दिल में रंजिश रखी गई। फिर उसके जो मेन मुलजिम है उसके दामाद ने एक शूटर के ज़रिए, उसी इलाके का वो रहने वाला था शूटर, उसे सिर्फ महज 10,000 रुपये दे के तो एक शख्स को कत्ल करवा दिया। ये कत्ल की वारदात हुई और लाहौर शहर में शूटर्स के ज़रिए बेशुमार लोगों को कत्ल करवाया जाता है और चंद रुपयों की खातिर शूटर जो है वो कत्ल कर देते हैं। और 10,000 रुपये में इनके भाई को कत्ल कर दिया, उसके बच्चों को यतीम कर दिया, उसकी बीवी को बेवा कर दिया और इनके लिए ज़िंदगी भर का दुख छोड़ दिया। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या इनके साथ कर रही है, कितने मुलजमान जो टोटल हैं उनको क्या जो है मरकज़ी मुलज़म उनमें से कौन सा है, शूटर पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया है, ये हम इनके भाई से जानने की कोशिश करते हैं। तुसी अपना नाम दसो जी, की नाम है तुहाडा? सदीक डार। सदीक डार साहब। और मकतूल तुहाडा की लगदा सी? मेरा छोटा भाई सी। छोटा भाई सी। ते किस तरह कत्ल होया ए भाई ने दस दिता और मारन वाला कौन सी, मरवान वाला कौन सी, यह भी पता चल गया। हुण पुलिस ने किस तरह मुलजिम नूं गिरफ्तार किया? तुसीं ते नामालूम अफराद के खिलाफ FIR कराई सी, किहड़ा ऐसा क्लू पुलिस नूं मिलिया या तुहानूं कोई शुबा होया ते मुलजिम फड़े गए? FIR भैन जी तो बेशक पढ़ लो, यह नामजद है मुलजिम। नुमान मेरा भाई डेथ होने तो पहले नामजद करके गया, दस के गया है। अच्छा। 2 नामालूम ने। अच्छा, FIR थी। ठीक है। कत्ल करने वाले का नहीं पता कत्ल सी? करने वाले का नहीं पता। ठीक है। क्योंकि शूटर सी ना बाहर दा ठीक है। बंदा। अच्छा, भाई नूं जो गोलियां लगियां कुछ अरसा जिंदा रहा? 2 घंटे। 2 घंटे। 2 घंटे जिंदा। अच्छा, उस दौरान उन्हें पुलिस नूं बयान दिता? बयान दिते हर चीज़। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उस तो बाद शूटर नस जाता। 35 दिन बाद 25 जून ਨੂੰ गिरफ्तार होया। जमानत कैंसल होंदी सूरत सैशन कोर्ट लाहौर। ठीक है। सैशन कोर्ट तो 25 गिरफ्तार होया दिन दे टाइम, रात ਨੂੰ उसी दिन सेम डे इचरे पुलिस लैके जाता है, ਉੱਥੋਂ अपना दोस्त फड़वाता है राशिद जो कि दाऊद खान का दमाद है। ठीक है। उस तारीख फिर सानू पता चला, वरना असीं तो 35 दिन यकीन की शक भी नहीं किया क्या काम इन्होंने करवाया है। ठीक है। वो जनाजे च भी शरीक होए? जनाजे च भी शरीक होए और तुहाडे दुख च भी शरीक होंदे रहे? अफसोस कीता? अफसोस कीता। अच्छा। वो फिर जो 26 तरीक ਨੂੰ एक दिन बाद सानू उन्होंने बुलाया तो उत्थे सानू उन्होंने फेस तो पता लगा। नौमे ਨੂੰ ਅਸੀਂ पहली दफ़ा देखा, राशिद ਨੂੰ भी पहली दफ़ा देखा, दाऊद ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਸਸੁਰ ਦੀ हैसियत ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ दामाद ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ दामाद ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਕਰਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ दामाद ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ अपनी हिरासत च रखा। उस दौरान इन्होंने एक दाऊद खान के बेटे ਨੂੰ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਿਆਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਮੋਇਨ ਇਲਿਆਸ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ, ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਡੇਟ ਵੇਖ ਲਓ, 164 ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, 14 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ। ਨਹੀਂ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਤਾ ਨਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੋਇਨ ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ? ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਮੁਨਜ਼ਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 5 ਮਿੰਟ ਮੌਕਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 5 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਆਫਿਸ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡੀਆਈਜੀ ਕਿਲਾ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੀ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮੋ ਇਕਰਾਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੌਰੀ ਫੜ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਾਈਕ ਉੱਪਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਰੰਗਮਹਿਲ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਜ਼ਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਈਓ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ਫਕਤ ਅਬਾਸ ਮਗਿਆਨਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜੇ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਕੀ ਸਮਝਿਓ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਇਨ ਜੀ, ਇਲਿਆਸ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਓਪਨ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਸਐਚਓ ਤੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਿਪਟੀ ਤੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ? ਇੱਕ ਨੁਮਾਨ ਉਰਫ ਨੋਮਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਾਚਾ ਸੁਸਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਹੌਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾ ਗਿਆ? ਕੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਾਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਮੁਤਕਦਮੇ 'ਚ ਮਲਵਸ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਲਵਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ, ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਚੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ? ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ? ਜਨਾਬ ਉਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰੋ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਠਾ ਲਈ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸਾਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਊਦ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਦਾਊਦ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 3 ਜਾਂ 2 ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਤਲ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਂ ਇਹ ਦਾਊਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਈ ਲੱਗਾ, ਲੋੜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਲਟੈਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਤਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲਟੈਰਮ ਕਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਸੈਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਯकीन नहीं गा? नहीं बिल्कुल नहीं, टोटली कि पुलिस तफ्तीश सही कर रही है। अच्छा जी, अब आपको इस केस के हवाले से जो मज़ीद चीज़ें सामने आई कि जिस रिश्तेदार ने इंतहाई करीबी रिश्तेदार की जानिब से इनके भाई को कत्ल करवाया गया और उसमें 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट ये बताते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, जिसमें से एक शूटर था, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया और जिसने शूटर से कत्ल करवाया और शूटर भी इस बात का एतराफ़ करता है कि मुझे कत्ल किसने करवाया था बयान दिया, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पुलिस ने उनको छोड़ दिया और जो चचा ससुर थे उसके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं की और उसको गिरफ़्तार भी नहीं किया। अब इस केस से जुड़े रिश्तेदार, मकतूल के करीबी खूनी रिश्तेदार, वो क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज और इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या कहती है कि एक तरफ तो वो इनामात ले रही है अपने सीनियर अफसरान से और एक जानिब मुकदमे के जो मुद्दई हैं वो उनकी इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन ही नहीं है और तो और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन भी किसी और ईमानदार ऑफिसर से जो है वो तब्दील करवाना चाहते हैं, किसी और ईमानदार ऑफिसर से करवाना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने आज एप्लीकेशन भी दे दी। लेकिन वो भी उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए कि बच्चे, करीबी रिश्तेदार, माँ और बहनें और दीगर रिश्तेदार क्या कहते हैं, ये उनकी ज़ुबानी सुनिए। मकतूल मकसूद डार जो थे उनकी वालिदा भी हमारे साथ है, बच्चे भी हमारे साथ हैं और सबसे पहले अब उनकी मकतूल की वालिदा से जानते हैं कि किस तरह से बच्चे का कत्ल हुआ और करीबी रिश्तेदार ने कत्ल कर दिया, क्या वाक़या था। माँ जी की होया सी बेटे दे नाल की लैन देन दा मामला सी जिन्हें कत्ल करवाया? इसके चाचे सोने ने पैसे देने से। पैसे देने से? हाँ, मेरे बेटे दे। अच्छा। लैन गया तो उन्होंने को धमकी दी नाल उन्होंने पिस्तौल कढ़िया। अच्छा। बड़ा भाई भी नाल सी, बड़ा जरा थे वो बैठा सी। ठीक है। ये फिर दोनों भाई उथे लोगों ने छुड़ा के सुलह सफाई कढ़ाती। ठीक है। वो तो ये बेचारे वापस आ गए। अच्छा। तो उन्हें फिर पैसे भी दिते, पता नहीं कि मैं नहीं पता, इलम नहीं था पैसों का, यानी कि लैन देन करके तो छुड़ा सफाई हो गई है ना, मैंने पता है। एक घर आ गए 6 साल 5 साल गुजर गए, इस गल कोई पता नहीं सीगा। ठीक है। मेरा बेटा जा रहा सी कोई घोड़ा कब्रस्तान जरा टंगसाली, तो इनू इलम भी नहीं सी कि मेरे नाल कुछ होना भी। वो बीवी दसदी कि अम्मी घरों चंगा भले गए ने तो अपना उन्होंने पीछा किया, पता नहीं की किया, वो मगर चढ़े सी। ठीक है। यह जरा चाचा सोड़ा है ना, इन्हें कहते ने साल के 2 साल पहले का प्लान बनाया कि मैंने मरवा देना। अच्छा। और जो मुलजम फड़िया ना नोमा ना था, उस मुलजम ने सारा कुछ दस दिता कि मैंने इस बंदे ने पैसों की ऑफर भी दी है कि तू फड़िया जाएगा, मैं तेरी जमानत करा देंगा, तू 6 महीने साल गैप भी हो जा, तो ऐसी कोई गल नहीं। तो उस तो बाद ना असी पुलिस वाले को बेटे जाते रहे, उन्होंने साड़ी एक नहीं सुनी। वो कभी तफशीशी गैप हो जाता सी, कभी कुछ हो जाता सी। मेरी बेटी भी पेश हुई है इतने गई है दफ्तर, क्योंकि मेरी तबीयत बड़ी खराब सी, तो फिर बेटी गई भैन भरावां दे नाल, बड़ी बेटी मेरी छदरे रहिंदी, उन्हें फिर जाके उत्थे बयान लिखाए ने कि असर साडे नाल जुल्म होया, सानू इंसाफ चाहिए। ठीक है। माँ जी बहुत प्यार होएगा बच्चे नाल, बेटे नाल है ही बच्चा सी, 4 बच्चे किराए दा घर है, बच्चे स्कूल पढ़ते सी, ते अज उठ गए ने। इन्हों का सारा कोई नहीं, अल्लाह तो सवाल। मैं वो तो किराए थे तुम वेख्या नहीं है, अखलात वेखे जी कि असं खा नहीं सकते किराए थे, असं कहने चुके नहीं कि मेरी बहू के पेके भी अड्डे नहीं गए, वीर भरा 2 ने, वो भी बेचारे माड़े। जो सुन किया ना दाऊद चाचा सोड़ा, तो चाचे सोड़े का बेटा वो दमाद है, उतों टंगसाली के रहने वाले ने, जरा वे की उन्होंने नाम राशद, ए तो नोमा एक जगह पर रहिंदे सी। इन्हों ने उन्होंने बाबे उन्होंने चाचे सोड़े ने कहा
ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਹੀਗਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਦ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ 'ਚ ਹੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ, ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਉਹ ਇਹੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਤਰੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਸੋੜਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਟੱਬਰ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ठीक है। ए माइक दो बच्चे ਨੂੰ 5 जरा। ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ। बेटा आप कहाँ रहते हैं और अच्छा, तो आपके पापा उधर क्या करने गए थे? जी वहाँ पे क्या करने जाते थे? काम करते थे वहाँ पे? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 7 में हूँ। 7 में पढ़ते हैं आप। तो क्या हुआ, कोई पता था कि आपके पापा की किसी के साथ दुश्मनी है, किसी के साथ लड़ाई? कुछ पता नहीं, आपको कैसे पता चला? मेरे खालू का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि आपके पापा को गोलियाँ लग गई हैं। अच्छा, तो फिर आपको पता चला कि इस तरह से डेथ हो गया है। वो जो जिन्होंने कत्ल करवाया, जो मुलजिम पुलिस ने पकड़े हैं, आप उनको जानते थे? वो आपके रिलेटिव थे, आपकी मामा के रिलेटिव थे? अच्छा, तो आपको कभी घर में बात नहीं पता चली कि उनके साथ कोई झगड़ा है या वो कुछ है? कुछ ऐसा नहीं है। भाई को दें। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? माइक करीब करो। 5 क्लास में पढ़ते हो। क्या हुआ आपके पापा को? किन्होंने मारा? जानते हैं उनको? नहीं, मम्मा के चाचू ने मम्मा के चाचू ने मारा। अच्छा, तो आप आजकल छुट्टियां गर्मी की, जी तो पापा उधर काम शाम के लिए जाते थे? जी अच्छा, प्यार आप सबसे छोटे हो भाई? हैं? जी पापा से बहुत प्यार था? लास्ट टाइम मिले थे जब वो गए थे? क्या कह के गए थे? ऐसे लेने जा रहा हूँ इसके लिए बच्चों को। पैसे जा रहा हूँ। पैसे लेने जा रहा हूँ। अच्छा, चलो भाई को दो। भाई आप बताओ कि कैसे हुआ आपको? घर में किसी ने बताया पहले, पापा ने मामा से या किसी से बात भी की थी कि इनके साथ कोई दुश्मनी है या ये डराते हैं या कत्ल की इन्होंने कभी धमकियाँ दी हैं? नहीं, उन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा तो नहीं था घर में कि मुझे कोई ये कार्ड है, दुश्मनी कार्ड है। मगर वो ये कहते थे कि ना इनके घर ना जाया करो, क्योंकि इससे ना मुझे तरह थोड़ा खतरा है कि ये लोग ना इनके घर ना जाया करो। बस मैं हमारे मामू की शादी पे भी नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ पे ये आता था ना दाऊद और इसका जो भनवैया राशिद होनी, तो हम वहाँ नहीं जाते थे क्योंकि ये बड़े ख़तरनाक कहते अपने आप थे ना। अच्छा। जो मर्जी करा सकते थे, तो अच्छा। यहाँ नहीं इनके पास जाना करना। अच्छा, तो इसलिए पापा मना करते थे? मना करते थे, यहाँ नहीं जाना इनके पास, इनके घर में नहीं। अच्छा, लेकिन जब आपके पापा को कत्ल कर दिया इन्होंने, तो जनाजे में भी आए, अफसोस के लिए भी आते थे? बड़ी आराम से आए हैं जनाजे पे, कह रहे हैं बड़ा ऐसे बैठे हैं कि उन्होंने कुछ कराया नहीं है, ऐसे आगे बैठे हैं। फिर पता कैसे चला आपको? पता कि कैसे पता चला कि इन्होंने मर्डर करवाया? फिर जब मुलजिम नोमा वो गिरफ्तार हुआ तो उसको उन्होंने जब पेश किया आगे, तो उसने बताया कि ये लोग मेरे से कराते थे, मेरा इनके साथ ताल्लुका आता है इतने सालों से। अच्छा। तो इन्होंने मुझे कि ये कहा कि मार दो उनको, तो मैंने मार दिया। इन लोगों ने कराया, पिस्टल के पैसे इन्होंने दिए हैं। अच्छा, ये सब कुछ फिर पता चला, ठीक हो गया। ये बच्चे थे और माँ थी जिन्होंने अपने प्यारे के हवाले से सारा कुछ बताया कि किस तरह से कत्ल की वारदात हुई। और मकतूल जो था वो उसका बड़ा बेटा जो है वो ये कहता है कि मुझे पता था कि बाबा ने अक्सर मना किया था कि इनको ना मिलें, इनके घर ना जाएं, क्योंकि ये ख़तरनाक लोग हैं। और यकीनन मरने वाले का कहा सच साबित हुआ और वो जालिमों ने इनके वालिद की ही जान ली। मकतूल की बेटी जो है वो बच्चे भी बताते हैं, बच्चों की दादी भी बताती है, और मकतूल की जो माँ भी है कि बड़ी लायक है। कुछ दिन पहले जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया उसमें उसने टॉप किया, और जब टॉप किया यकीनन बच्चे बहुत खुश होते हैं, और इस खुशी को माँ बाप के साथ जो है, और माँ बाप भी बच्चों के साथ इसको बड़ा शेयर करते हैं। लेकिन बाप जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा कि अपने आप को वो
बेटी बता सके कि उसने जो है उसकी मेहनत थी वो रंग ले आई है। इस हवाले से उसकी मकतूल की बच्ची जिसने टॉप किया मैट्रिक में, वो क्या कहती है, उसके क्या ख्यालात हैं और किस तरह से उसके बाप को बेदर्दी के साथ कत्ल किया और उसकी आने वाली ज़िंदगी और उसकी आने वाले वक्त का जो उसका मुस्तकबिल है उसका क्या हाल होगा, ये उसकी ज़ुबानी जान। मेरे मैट्रिक में आया है 1126 आउट ऑफ 1200। 9 जुलाई को मेरा रिजल्ट अनाउंस हुआ था। आई विल ट्राई टू बिकम समथिंग पावरफुल। ये फीलिंग नहीं बताई जा सकती। जो फील हुआ पहले जब रिजल्ट आया था तो मेरे फादर थे और अब थे ही थे। जाहिर सी बात है किसको अच्छा लगेगा कि अब ऐसा हो। जो मुलजिम है जिसको आपने पकड़ा और जुडिशल भी अब वो हो गया, ये क्या कोई रिकॉर्ड याफ्ता है, इसी तरह के उसके मामला हैं? जी बिल्कुल, वो रिकॉर्ड याफ्ता है। उसके 20 से ज़्यादा FIR हैं उसके ऊपर। एक डकैती की FIR है, बाकी चोरी की FIR है। एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका ऑलरेडी, लेकिन शूटर नहीं है, चोर डकैत टाइप वो आदमी था। मोइन इलियास हैं जी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भाटी गेट है हमारे साथ। जो कत्ल होता है, कत्ल की वारदात होती है, जो मकतूल के लवाकिन या मुकदमे का मुद्दई जो है वो पुलिस के ऊपर भी बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन ये मुलजिम कैसे गिरफ़्तार होता है, किस तरह से इसको जो है गिरफ़्तार किया जाता है और कत्ल करने की वजह क्या है, ये मोइन साहब से जानते हैं। मोइन साहब, एक तो ये बताइएगा कि जब इसका कत्ल होता है, कत्ल की ये वारदात होती है, तो नामजद पर्चा होता है, FIR नामजद होती है या नामालूम के ख़िलाफ़ होती है? नहीं जी बिल्कुल नामजद होती है, और ये एक दूसरे को पहले जानते हैं, किस वजह से नामजद FIR हुई थी। वो इसको 2 माह से ट्रेस कर रहा था। जब उसने रोड के ऊपर इसको नहाता देखा है तो इसके ऊपर उसने फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद वो मौके से भाग गया और भाग के वो पीछे चला गया अपने जहाँ के वो रहने वाले थे, जड़ावाला ननकाना के। ठीक है। फिर इसको CDR की मदद से ट्रेस किया है। ट्रेस करने के बाद उधर से इसको पकड़ के लेके आए हैं। 1 महीने के अंदर अंदर इसको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके इसकी बरामदगी डाल के जिस मोटरसाइकिल के ऊपर भागा वो मोटरसाइकिल बरामद की। इसके अलावा जो पिस्टल इसने इस्तेमाल किया वो बरामद करके इसको हवाला जुडिशल भिजवाया। ठीक है। अच्छा मोइन साहब, ये बताइएगा कि इस मुलजिम के हवाले से काफ़ी सारे खदशात उनके हैं। उनका कहना है कि मुलजिम इतराफ़ करता है कि उसको जो है वो शूटर के तौर पे इस्तेमाल किया गया और उसके रिश्तेदार जो थे मरने वाले के, उसका चचा ससुर था, उसने और उसके शायद बेटे ने जो है या दामाद ने उसको कत्ल करवाया। तो इस तरह की बात क्या है कि ये मामला इस तरफ जाता है कि वो शूटर था? नहीं, वो शूटर तो नहीं था, लेकिन उसने अपनी को रंजिश रखी हुई थी जिसकी वजह से उसने मारा है। बाकी जिस एंगल से मुद्दई जो लोग कह रहे हैं वो भी हम चेक कर रहे हैं। उसके मतलब अभी वो तफ्तीश जारी है। उसके मतलब कोई फाइनल राय नहीं हुई, वो तफ्तीश जारी है। जैसे कि तफ्तीश मुकम्मल होगी उसके मतलब भी आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन मुलज़म ने बताया कि मुझे इसके ऊपर रंजिश थी जिसकी वजह से मैंने इसको खुद मारा है। अच्छा मुझे यकीनन रंजिश होगी, और जिस रंजिश का ये भी जिक्र करते हैं जिस रिश्तेदार का, उसको चेक किया गया, कहते 7 साल पहले या 6 साल पहले किसी से 1 लाख रुपया लेना था। फिर जब ये पैसे लेने के लिए गया तो उन्होंने जो है वो पिस्तौल तान लिया उनके ऊपर। कुछ इस तरह के मामला तो हुए। ये इस तरह की इन्वेस्टिगेशन को ज़रा बड़े पैमाने में, क्योंकि यकीनन जो मुद्दई है उसके तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तो इस एंगल से भी देखा गया। जी बिल्कुल देख रहे हैं, वो तफ्तीश अभी जारी है। वो इनका कोई निजी मामला था आपस में, बहनोई और साले का जो इनका उधार था, वो भी देख रहे हैं मामला। वो भी इन्होंने एप्लीकेशन देनी है, वो कह रहे हैं हम देंगे एप्लीकेशन उनके ख़िलाफ़। वो भी देख रहे हैं। जो नामजद FIR एक ही मुलज़म था FIR में, जिसको हमने बोला जुडिशल कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसमें इन्होंने कितने लोगों को नामजद किया था? जो मरने वाला था वो कुछ दिन बाद उसकी डेथ होती है, वो अपना कोई बयान, इकबाली बयान या कुछ ऐसा स्टेटमेंट देता है पुलिस के सामने। जो ज़ख्मी होता है जब, तो मरता बाद में, इसका क्या मामला, थोड़ा तफसील हमें बताइए इसकी। नहीं, इकबाली बयान उसने तो नहीं दिया अभी। नहीं, जो मरने वाला था उसने क्या स्टेटमेंट दिया था कि उसके कातिल उसका कौन है, किसने? ऐनी शाहदीन ने बताया जब फायरिंग हुई है, पुलिस पहुंची है, उन्होंने कहा कि ये नाम ले रहा था क्योंकि वो फौरी तौर पे 1122 वाले को हॉस्पिटल ले गए थे। तो ऐनी शाहदीन ने बताया कि ये नाम ले रहा था, जिसकी वजह से उसके ऊपर नामजद FIR हुई। अच्छा ठीक है। जो मुलजिम है जिसको आपने पकड़ा और जुडिशल भी अब वो हो गया,
ये क्या कोई रिकॉर्ड याफ्ता है, इसी तरह के उसके मामला हैं? जी बिल्कुल, वो रिकॉर्ड याफ्ता है, उसके 20 से ज़्यादा FIR हैं उसके ऊपर। एक डकैती की FIR है, बाकी चोरी की FIR है। एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका ऑलरेडी, लेकिन शूटर नहीं है, चोर डकैत टाइप वो आदमी था। ठीक है। अच्छा, इन दोनों की रंजिश क्या हो सकती है कि हो सकता है ये जो मरने वाला है इसका भी कोई साबका रिकॉर्ड था? नहीं, मरने वाला तो नहीं साबका रिकॉर्ड था, लेकिन वो तो शरीफ था और उसके मतलब पता भी किया गया, वो बच्चों की रोज़ी रोटी कमाता था, गरीब आदमी था। लेकिन वो शक करता था उसके ऊपर कि शायद ये मुझे पकड़वाता है या पुलिस को पकड़वाने में इसकी मेरी मुझे पुलिस को मदद कर रहा है ये, इसने इस वजह से ये चोर था और ये उसके ऊपर शक करता, उसको 2 माह से ढूंढ रहा था। ठीक है। इसने इतराफ़ किया कि मैं 2 माह से उसको, जब से जेल से आया हूँ, मैं इसको ढूंढ रहा था। ठीक है। वही सब यकीनन जो ज़रूरतमंद होता है वो दीवाना होता है, और मुकदमे का जो मुद्दई है वो बड़े संगीन किस्म के इन्वेस्टिगेशन पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि उन्होंने पैसे लिए, रिश्वत ली, इसलिए बाकी मुलज़िमों को जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया, और हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है तब्दीली तफ्तीश के लिए एप्लीकेशन भी दे दी है, इल्ज़ाम है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, तफ्तीश हमने तो मेरिट पर किया, 302 की तफ्तीश में कोई कमी कोताही तो हमने नहीं छोड़ी, लेकिन अभी तफ्तीश जारी है। जैसे आपको बताया, जैसे वो शक कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों के ऊपर, वो अपना तदीमा बयान देंगे और या को भी कुछ स्टेटमेंट देते हैं या किसी को नामजद करते हैं, तो उसके ऊपर तफ्तीश जारी है और तफ्तीश इंशाल्लाह मेरिट पर ही होगी। ठीक है जी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भाटीगेट थे जी, इनकी आपने बात सुनी, तो ये दोनों बातों का मौक़िफ़ और दोनों तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। जो मुकदमे के मुद्दई हैं वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि पुलिस तफ्तीश ठीक नहीं कर रही है, और मज़ीद लोगों को जो उनके भाई के कातिल हैं उनको गिरफ़्तार नहीं कर रही। लेकिन पुलिस की जानिब से बताया गया कि उस मुलजिम ने जो रिकॉर्ड याफ्ता है, चोरी और डकैती की वारदातें भी करता था, वो पिछले 2 माह से मकतूल को तलाश कर रहा था। जब उसको कत्ल किया गया तो रेस्क्यू की टीमें जब मौके पे पहुंची तो उसने अपना बयान उस वक़्त उनको नाम भी लिया कि उसको कत्ल करने वाला कौन है। यकीनन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने भी कहा, और अभी जो तफ्तीश के मराहिल हैं वो बहुत सारे बाकी हैं, और ये यकीनन आने वाले वक्त में ही मालूम हो सकेगा कि जो मकतूल के लवाहिकीन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो बात ठीक है या पुलिस का मौक़िफ़ दुरुस्त है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। ये था आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से शूटर्स के ज़रिए लोग अब कत्ल गारत करवाते हैं, और शूटर्स कितनी आसानी से लोगों को दस्तयाब आ जाते हैं। इस केस से जुड़ी तमाम वो चीज़ें आपको आज के प्रोग्राम में हमने दिखाई कि 1 लाख रुपए का लेन देन और कई साल गुजरने के बावजूद भी लोग अपनी दिल में रंजिश रखते हैं, और फिर मौका पाते ही अपने करीबी रिश्तेदार हो या जानने वाले हो उनको कत्ल करवा देते हैं। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।